off their microphone. Pramila ma'am, shall we Yes. start with the webinar? Ma'am is there. Kavita Bhargav ma'am is here. Yes, ma'am. Kavita ma'am is here. Okay, fine. Just wait for 2-3 minutes. Earlier, yes. Okay, ma'am. Let the parents come. 2 minutes more. मामी आपका स्वागत I request all the attendees to kindly turn off their microphones. Yes, Gargi ma'am. Gargi ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Gargi ma'am. Let's start with the. Okay, ma'am. A heartfelt welcome to all the SRN parents and students.
Thank you for joining us for today's webinar. My name is Gargi Gupta, a SRN counselor and the moderator for today's session. Along with us, we have our respected principal, Ma'am Usha Sharma, CBSE National Awardee, Vice Principal Administration, Sarla Badwani, Ma'am, Vice Principal Academics, Pramila Sharma, Ma'am, Hostel Proctor, Monica, Ma'am, Headmistress Administration, Aprajita, Ma'am, and Headmistress Academics, Pallavi, Ma'am. I welcome you all. Today's webinar is by SRN International School in collaboration with EHCC Hospital Jaipur on the topic mental health among students, which is an important subject to be aware about as a parent of young child. To present the topic, we are glad to have our guest speaker, Dr. Kavita Bhargav, psychologist and IMDHA certified clinical hypnotherapist, EHCC Hospital Jaipur. Now, I would like to invite our respected SRN Headmistress Pallavi Ma'am to extend her heartfelt welcome to the attendees on the behalf of SRN fraternity. Over to you, respected Pallavi Ma'am. Thank you, Gargi ma'am. Very blissful evening to all of you who are present. So, on behalf of complete SRN family, I extend a warm welcome to Dr. Kavita Bhargav ma'am, who is a psychologist and IMDHA certified clinical hypnotherapist and currently working at EHCC Hospital. We all are really privileged to have you here, and we are looking forward to attend this webinar because I guess we all want to know what is the necessity of mental health and well-being of the students, especially at the time when this pandemic situation is going on. So once again, I welcome you, ma'am, over here, and we are looking forward to hear from you soon, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now, without further ado, we will turn the time over to Dr. Kavita Bhargav, our guest speaker for today's webinar. Over to you, Kavita ma'am. Thank you, Gargi, and thank you, Pallavi ma'am, for the greetings and the introductions, and to the SRN principal, vice principal, and to the HCC team who have given me the opportunity to interact with all of you. So I can see small little kids here also. Along with that, I can see good people, good parents and teachers as well. So the topic, as we know, is mental health. So let me know, in which language do you want this webinar to be? Do you want it in Hindi, English, or a mix of both? How should I go about it? Ma'am, just go with bilingual. Bilingual, perfect है जी, तो bilingual पे चलते हैं. Okay, so I'll just start off the presentation here. I'll give a brief about what mental health is about and how we can remain balanced in all situations, and post which probably we can open the forum for question and answers. I hope this is okay. All right, give me a second. All right, so can I have the mic mute, please? All right. So when the topic says mental health, then it is for sure important and necessary to understand what mind is, because mental health is all about mind, and then from the mind, a happy, healthy body, mind, and soul. So when we understand mind, then Dr. John Kappas defines mind as a big ball of energy that is approximately 12 feet in diameter, the center of which is located in the pit of your stomach, where exactly you feel the butterflies. So mind और brain दो अलग चीजें हैं. Brain हमारी body में होता है, skull में होता है, जबकि जो mind है वो ball of energy होता है और कुछ इस तरह से दिखाई देता है. एक चीज यहाँ से बहुत क्लियर समझ आती है, वो ये है कि बॉडी ब्रेन के डायरेक्शंस को सुनती है, जबकि ब्रेन माइंड के डायरेक्शंस को सुनता है. और अगर मेरा बॉल ऑफ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथन्ड है, तो जो भी मेरे इस बॉल ऑफ एनर्जी के एनवायरनमेंट में आएगा या उससे ओवरलैप करेगी उसके माइंड की बॉल, तो हम सभी स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर रह सकते हैं. सो वेरी क्लियर विथ दिस एग्जाम्पल. Each one carries a mind and each one carries a brain. ब्रेन में लेजन्स हो सकते हैं, माइंड में लेजन्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी का बॉल है.
We have heard of brain dead situations, but we never heard of mind dead situations. Why? Because mind is a ball of energy, it cannot die. How do we function? Whenever a thought comes to my mind, suppose I want to have water, the thought will be in my mind. First, through the neural pathways, it will go to the brain. The replicate image or the image of a water bottle will be formed onto my brain, and then using certain nerve muscles, I will lift up my hand and drink water. That is a function with each action of ours. Even if I have to lift up my finger, सबसे पहले मुझे उसको उठाने के लिए सोचना पड़ेगा. कितना भी मान लीजिए, अगर मेरी बॉडी को भूख लग रही है और मेरे मन ने यानी माइंड ने डिसाइड कर लिया सुबह कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ चीज मैक्सिकन पिज्जा खाना है, तो मेरे को भूख भी नहीं लगेगी, आराम से पूरा दिन निकल जाएगा. पर द मोमेंट चीज मैक्सिकन पिज्जा मेरे सामने आएगा, मैं फटाफट से उसको फिनिश कर जाऊंगी. तो जिसका भी माइंड स्ट्रांग होता है, माइंड पावर स्ट्रांग होता है, वो पर्सन, अगर हमने देखा है बचेंद्री पाल जी की तरह, बड़े से बड़े माउंटेन को क्रॉस कर जाता है. और जिसका माइंड पावर वीक होता है, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ को भी नहीं संभाल पाता है. तो इसको समझने के लिए अब ये समझना है कि माइंड में 2 टाइप के पार्ट होते हैं. एक होता है चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं. दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं. द कॉन्शियस माइंड थिंक्स, analyzes, reasons, judges, takes decisions based upon those judgments and implements all those decisions. वहां पे उसकी बात खत्म नहीं होती है, वो फिर से थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, लॉजिक एंड सारी कहानियां शुरू कर देता है. तो धीरे धीरे थिंकिंग से ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है. जबकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 88 to 90% है. यानी कि हमारा सारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है, स्टोर्ड है. राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी मदर की वोम में पहली ब्रेथ ली, तब से लेकर के अभी तक की मेमोरीज आर अवेलेबल इन द सबकॉन्शियस माइंड. कैसे स्टोर होती है? सपोज एक दिन किसी छोटे से बच्चे ने अच्छा काम किया, उसकी मम्मी ने उसको चॉकलेट दिया. सबसे पहले फाइल जाएगी कॉन्शियस माइंड में. जैसे मैं और आप अगर बात कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में जा रहा है और फाइल वहां स्टोर होती है. जैसे ही हम सोते हैं, दोनों के बीच में एक लेयर होती है, क्रिटिकल फिल्टर जिसे हम कहते हैं. ये वो चश्मा है जिससे हम पूरा दुनिया देखते हैं. अगर मैं लाल चश्मा लगाती हूँ तो मुझे दुनिया लाल दिखाई देती है. If I wear blue glasses, then the world is blue to me. If it is green, the world seems green to me. जबकि दुनिया वैसी ही है, सिर्फ चश्मा मैंने लगाया, मुझे ये समझना है. तो ये जो क्रिटिकल फिल्टर है, ये हम हर बच्चे का डेवलप कर रहे होते हैं, नोइंगली या अननोइंगली, 0 to 8 की एज पे. एक बच्चा बिना क्रिटिकल फिल्टर के आता है, पर 0 से 8 जो भी हम बोलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है. उसके हर बिलीफ सिस्टम क्रिटिकल फिल्टर में आते जा रहे हैं. क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है, ये सभी चीजें हमारे क्रिटिकल फिल्टर में स्टोर हो जाती हैं. और फिर हम दुनिया को जज करने लगते चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी ने चॉकलेट दी, फाइल बनी कॉन्शियस माइंड में. जैसे ही बच्चा सोएगा, क्रिटिकल फिल्टर टूटेगा, अब जजमेंट आएगा, मुझे चॉकलेट मिली यानी मैंने अच्छा किया कि बुरा किया. ओ, चॉकलेट मिली, डेफिनेटली मैंने अच्छा किया. और अब वो फाइल जजमेंट अच्छा है तो नीचे वाली लेयर में आती है जहाँ पे फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं. अच्छा किया यानी हैप्पी फीलिंग. अब वो फाइल सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी. चॉकलेट की फाइल है, इवेंट है, जो भी अच्छा काम किया, और उसके साथ हैप्पी इमोशन एसोसिएटेड. अगले दिन वापस से पापा ने कुछ अच्छा किया तो चॉकलेट दिया, सेम प्रोसेस होगा. इसी फाइल में, चॉकलेट की ही फाइल में, एक पन्ना और ऐड हो जाएगा. फिर से इस बच्चे ने कुछ अच्छा किया और कुछ दिनों बाद उसकी टीचर ने भी चॉकलेट दी. चॉकलेट की फाइल में एक और पन्ना ऐड हो गया. टू एन एक्सटेंट कि आज अगर हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पहली चीज जब हम दुखी हैं तो क्या चाहिए, वो है चॉकलेट. इसलिए नहीं कि हम बचपन में हमें अच्छा किया था तो चॉकलेट मिली, जबकि इसलिए क्योंकि अब उस चॉकलेट के साथ
हैप्पी इमोशन एसोसिएटेड है। कुछ गलत करते हैं तो सिमिलरली वो ही सारी फाइल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव या हैवी इमोशंस के साथ आने लग पड़ती हैं। यानी अगर बच्चे ने कुछ गलत किया और आपने उसको डांट दिया, डेफिनेटली वो फाइल भी जज होगी, मैंने बुरा किया, गिल्ट का इमोशन होगा और वो फाइल भी स्टोर हो जाएगी बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में। तो इस तरह से कुछ फाइलिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि 88 to 90% है, ये हमारे सारे सर्वाइवल का, नीड का, सबका ध्यान रखता है। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम जग रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सबकॉन्शियस हमेशा और हमेशा एक्टिव है। इवन इफ व्हेन वी आर स्लीपिंग इन आवर ड्रीम्स, अगर हम अपने आप को सीढ़ियों से गिरता हुआ देखेंगे तो सबसे पहले सबकॉन्शियस आपको बोलेगा उठ जाओ, खतरे में हो। अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर भरने लगेगा नींद में ही, तो वो कहेगा उठो, पहले वॉशरूम जाओ, उसके बाद ही सोओगे। वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का भी ध्यान रख रहा है। ब्रेन सो रहा है, कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका राइट ब्रेन सो रहा, सॉरी लेफ्ट ब्रेन सो रहा है, पर सबकॉन्शियस माइंड आपके राइट ब्रेन से कनेक्टेड है और बाकी सारी चीजें अपने आप उनको ध्यान में रख रहा है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पूरा दुनिया सिर्फ 10 to 12% माइंड पे ही पूरी जिंदगी निकाल जाता है और सोचते हैं हम तो बहुत स्मार्ट थे, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हमारे सारे डिसीजंस अच्छे थे, पर हमें उन्हें ये भी बताना है कि 88 to 90% माइंड का इस्तेमाल उन्होंने किया ही नहीं है। अगर ये भी कर लिया तो फिर वारे न्यारे, सब कुछ हम एक्सेप्ट इजीली अचीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम? मैम, I have a question. Yes, sir. Ma'am, the subconscious and the conscious brain is a part of our brain or it is anything else? सर ये समझना है, यहाँ पे ब्रेन अलग है और माइंड अलग है। ब्रेन इज सम 2500 या 1500 ग्राम जितना भी मिलता है स्कल में होता है, हेड में होता है, जबकि माइंड इज अ बॉल ऑफ एनर्जी। इट इज मेजर्ड, इट इज रिसर्च बाय डॉक्टर जॉन कैपिस, जो मैंने आपको डायग्राम बताया। तो दोनों में फर्क है। माइंड थिंकिंग रीजनिंग कर रहा है, ब्रेन आपका बायोलॉजिकल पार्ट हो गया, जबकि माइंड आपका एनर्जी का बॉल है। इज दिस क्लियर सर? आयुष्मान जी? ओके मैम। ओके, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बात और क्लियर हो सकती है, वो ये है कि अगर मुझे बॉडी का मूवमेंट कराना है तो ब्रेन कराएगा थ्रू द पीनियल ग्लैंड या हमारा जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसको सोच समझ के। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर माइंड है और माइंड क्राइसिस परसीव कर रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो वो न्यूरल पाथवे से सिग्नल भेजेगा हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन में ये जो तीन चीजें हैं, पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस, ये देखेगा कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं लड़ने के लिए, क्या आप लड़ सकते हो या भाग सकते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे को पता चला कि टेररिस्ट बाहर आ गया है एकदम, तो हम क्या करेंगे? माइंड ने क्राइसिस परसीव किया, अब ये तीनों चीजें ब्रेन तक जाकर एनालाइज करेंगी कि आप क्या लड़ सकते हो। मैं ट्रेन नहीं हूँ इन दिस सिचुएशन, ब्रेन कहेगा कोई रिसोर्स नहीं है, भाग लो। तो सारे केमिकल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेरे पैरों में आ जाएंगे और वो एनर्जी को यूज करके मैं जोर से भाग जाऊंगी, तो फ्लाइट रिस्पॉन्स ले लूंगी। पर अगर यही मेरी जगह कोई और बैठा है जो आर्मी का है, तो उसका भी माइंड क्राइसिस परसीव करेगा, न्यूरल पाथवे से ब्रेन में कुछ इंफॉर्मेशन भेजेगा। इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाते ही चेक होगी कि रिसोर्सेज हैं, वो कहेगा हाँ आई एम वेल ट्रेन्ड, आई एम एन आर्मी पर्सन। अब ये इंसान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसी की बॉडी में केमिकल्स हाथों में आ जाएंगे और जो भी इसके हाथ में होगा ये उठाकर टेररिस्ट पे देके मारेगा। टेररिस्ट के ढेर होते ही इनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वापस से जैसे हम अभी बैठे हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज पे, वो भी इक्विलिब्रियम की स्टेज पे बैठ जाएगा। मेरे साथ क्या होगा? जैसे मैं भाग गई और अब मुझे दिख रहा है कि अब टेररिस्ट से मैं सेफ हूँ, वो पीछे रह गया है, तब मेरा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा और मैं नॉर्मल सिचुएशन में बैठूंगी।
ये सभी हम सभी के साथ ऐसा ही चलता है। किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में हमारे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होते हैं। अब वो क्राइसिस हो या किसी गर्म चीज को हम क्यों ना छू लें, तो हमेशा फाइट या फ्लाइट एक्टिवेटेड रहेगा ही रहेगा। इज दिस क्लियर टिल हियर? अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। यस मैम। परफेक्ट, थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखते हैं तो वो बात करती है थॉट्स और हमारी रियलिटी हम कैसे बनाते हैं उस चीज की। कैन यू सी द स्लाइड? Yes, ma'am. Perfect. Thank you. So if we look at the mind और brain, अगर हमें समझ आ गया है दो अलग चीजें हैं, डेफिनेटली हमारा जो माइंड है वो बिग बॉस है, क्योंकि माइंड वही करेगा, सॉरी बॉडी वही करेगा जो माइंड कमांड देगा। तो अगर मैं बॉडी का बेसिक यूनिट देखती हूँ सेल है, तो माइंड का बेसिक यूनिट अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देख रहे हैं तो थॉट बिकम्स द सबसे छोटा यूनिट ऑफ माइंड। And thought is nothing but again a packet of energy. एनर्जी दो टाइप की होती है, साइंस में हम पढ़ाते हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो रुकी हुई एनर्जी है, स्टैटिक है, उसको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, वो हिलेगी नहीं, वो रुकी हुई है। पर द मोमेंट उस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने हिलाना शुरू किया, अब वो एनर्जी इन मोशन बन जाती है या काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि सारा माइंड हमारे आसपास ही है या हम माइंड के अंदर है, तो एक बात क्लियर है, सारे थॉट्स हमारे अराउंड हैं। जिस भी पोटेंशियल थॉट पे मैंने कॉन्टेम्पलेशन का एनर्जी डाला, यानी सोच विचार की एनर्जी डाली, अब वो बन जाएगा एनर्जी इन मोशन, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इन मोशन इन कॉन्टेक्स्ट टू थॉट इज नथिंग बट इमोशन। इमोशन इज अगेन इन द माइंड। अभी तक कोई मेरे इमोशन रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेरी इमोशन है, but the moment it comes from the energy body to my physical body, it is now a feeling. Now here I will display whatever I am having the emotion inside. Like अगर मैं खुश हूँ तो मैं मुस्कुराऊंगी, मैं दुखी हूँ तो मेरा मुंह सैड हो जाएगा, गुस्से में हूँ तो अलग ही रिस्पॉन्सेस हम देंगे। जब इतना हो गया फीलिंग, अगर मैं मुस्कुरा के किसी से बात कर रही हूँ तो सामने वाला भी मुझे मुस्कुरा के ही बात करेगा। अगर मैं गुस्से से किसी से बात करूंगी तो मेरा एक्सपीरियंस भी नेगेटिव यानी गुस्से वाला ही बनता जाएगा। और सारे एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया पहले वाले इस वाले डायग्राम में, कि सब एक्सपीरियंसेस हमारे स्टोर हो रहे हैं कॉन्शियस माइंड में सबसे पहले, और रात को सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड 6000 टाइम्स मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू द कॉन्शियस माइंड। और यही वो माइंड है जो सुपर कॉन्शियस, यानी कि जो कार्ल यूंग का कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उससे कनेक्टेड है। ये सब जब होता रहेगा, आने वाली जो भी आपकी रियलिटी होगी, ये वही रियलिटी होगी जिस पे आपने अपनी कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी डाली होगी, यानी जिस भी थॉट पे आपने फोकस किया वो आपकी रियलिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरोना की सिचुएशन है, एक जने ने सोचा कि नहीं मेरे साथ, मेरे को बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मेरा पैसा डूब रहा है या मैं काम नहीं कर पा रहा, और दूसरा वाला कह रहा है अरे आराम से हो रहा है, मैं तो खुश हूँ, मैं घर बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं तो फैमिली के साथ में भी हूँ और काम भी हो रहा है। तो पहले वाले इंसान की सिचुएशन समझते हैं जिसको लग रहा है कि लॉस हो रहा है। अब लॉस वाले थॉट, पोटेंशियल थॉट पे उसने एनर्जी डाल दी। एनर्जी जब डाल दी तो इमोशन कैसा बनेगा, कोई बता सकता है मुझे? सैड, एब्सोल्युटली। सैड इमोशन अभी बॉडी के बाहर है, धीरे धीरे वो थ्रू द एनर्जी बॉडीज चक्रा सिस्टम अंदर बॉडी में आ जाएगा, फिजिकल बॉडी में। कैसा दिखाई देगा हमें, हम कैसे समझेंगे वो सैड है? लो एनर्जी, किसी से बात नहीं करना, आइसोलेशन में जाना, हैरान होना, परेशान होना, या ये भी हो सकता है कि वो दूसरों पे चिल्लाने लग पड़े, गुस्सा होने लग पड़े, बच्चों पे चिल्लाए या डॉग को किक कर दिया या मदर फादर को कुछ ना कुछ बोल दिया। ये सब फीलिंग हमें दिखाई देगा। अब ये इंसान अगर इस जोन में है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा बनेगा आप समझ सकते हैं।
और वो सारे ही एक्सपीरियंसेस उसके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस में आ जाएंगे और आ गए होंगे अभी तक, और 6000 टाइम मोर पावरफुल। आज के बाद रियलिटी क्या बनेगी? फाइनेंशियल लॉस है तो है, खुश नहीं है ये बंदा, अगर सैड है और इम्बैलेंस्ड होके कोई भी वो काम कर रहा है, फॉर श्योर ये फोकस्ड होके अपना काम नहीं करेगा। अगर फोकस्ड होके नहीं काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है। प्रोडक्टिविटी लॉस क्या दे रहा है दोबारा? नो पैसा, राइट? पर दूसरा इंसान है जो कह रहे हैं अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हम तो घर बैठ के काम कर रहे हैं, हम तो फैमिली के साथ भी हैं, उनको ध्यान भी दे सक रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हम काम भी कर रहे हैं। अब अगर ये थॉट पे एनर्जी डाल दी तो कैसा इमोशन बनेगा? कौन बताएगा? हैप्पी। हैप्पी, वंडरफुल, ऑसम। अब ये हैप्पी इमोशन बना, फीलिंग बॉडी पे कैसे दिखाई देगा? ये खुशी पूर्वक काम करेगा, ये अपना टाइम टेबल मैनेज करेगा, सुबह ये करना है, उसके बाद ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, बच्चों को अभी पढ़ाना है, और बच्चे भी खुश कि अच्छा ये मेरी क्लास का टाइम है, इस टाइम में बच्चों से अपने फ्रेंड से बात करूंगा, ये टीचर से मिलने का टाइम है, और मैं घर पे भी हूँ, मस्ती भी कर सकता हूँ। हो सकता है जो हमारे जोक्स आजकल चल रहे हैं, ऊपर से स्कूल शर्ट पहना, नीचे से कुछ नहीं पहना, ये भी वो बच्चे कर सकते हैं, राइट? और अगर वो इस तरह से पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे, तो उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली अब हेल्दियर बनेगा। और ये सारे एक्सपीरियंसेस भी सेम पैटर्न के तौर पे पहले कॉन्शियस माइंड में जाएंगे, और उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड में जैसे ही बंदा सोएगा, एंड देन 6000 टाइम पावरफुल, इसकी रियलिटी वही बनेगी, हैप्पी, हेल्दी, फाइन, मोर प्रोडक्टिव। प्रॉब्लम दुनिया के साथ कहाँ आती है? वो अपने एक्सपीरियंस बदलना चाहती है, वो अपनी रियलिटी बदलना चाहती है, वो अपनी फीलिंग्स भी बदलना चाहती है, और वो अपनी इमोशंस भी बदलना चाहती है, पर एक चीज वो नहीं बदलती, और वो है उनके थॉट्स। कहानी उल्टी ही चलेगी। थॉट्स बदलोगे तो इमोशन बदलेगी, उसके बदलते ही फीलिंग चेंज होगी, फीलिंग के चेंज होते ही आपका एक्सपीरियंस बदलेगा, सबकॉन्शियस माइंड्स की फाइल ओवरराइट होंगी, एंड देन यू वुड अट्रैक्ट अ न्यू रियलिटी फॉर यू। आई डू नॉट प्रिडिक्ट डेस्टिनीज हियर। मैं सबकॉन्शियस के साथ काम करती हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, पर इतना समझती हूँ, इतना बता सकती हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी को खुद कैसे लिख रहे हैं और इसको बेहतर कैसे लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चन ऑन टू दिस स्लाइड? या समझ आ गया? Yes, ma'am. Please carry on. परफेक्ट है। क्यों मैं रोक रही हूँ? इसलिए क्योंकि मैं ब्लैंक स्क्रीन को पढ़ाने में अभी तक सक्षम नहीं हुई। Of course, we can understand. इसलिए आई वांट टू सी पीपल, आई वांट टू नो देयर एक्सप्रेशंस, बट आई एम रियली हैप्पी कि बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगला पॉइंट समझते हैं यहीं से। सो एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए यहीं से, जो हमारा लाइकिंग है, या हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, या हमारी जो वैल्यू बेस है, या लाइक डिसलाइक, ये मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, ये सारा मेरा रूल सिस्टम हो गया, जो मेरे क्रिटिकल फिल्टर में है, जो मैंने आपको इस वाले डायग्राम में बताया था, दोनों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच वाला क्रिटिकल फिल्टर। अब अगर वहां पे मेरी रूल्स एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है और मुझे रियलिटी अलग मिल रही है, सपोज रियलिटी वही मिल रही है, तो मैं एट ईज रहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरा जो भी वेबिनार होता है, मैंने एक रूल बना दिया एक दिन कि मेरा जो भी वेबिनार होता है, मुझे हर एक पार्टिसिपेंट एक एक एप्पल देगा। अब एप्पल देगा, और प्रमिला मैम ने भी समझ लिया कि हाँ चलो अभी तो मैम को एप्पल पसंद है, सबकी तरफ से हम एप्पल का एक पूरा कार्टन भिजवा देते हैं मैम के घर, तो वो मुझे मिल जाता है, तो मेरी रियलिटी भी वही बन जाती है जो मैंने मांगी, तो मेरे तो बल्ले बल्ले हैं। तो अब क्या होगा, मेरा रूल मेरी रियलिटी से मैच खा रहा है, मैं एट ईज हूँ, एट कंफर्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। बट द मोमेंट अगर एक रूल ये हो गया कि मेरे को एप्पल चाहिए, पर गार्गी कहती है कि मैम ने बहुत सारे एप्पल्स खा लिए आज तक और मेरी इंटरेक्शन मैम से अच्छी हो गई है एक दो दिन में, तो आज मैं मैम को एक कहती है कि मैं ऑरेंज भेजूंगी। ठीक है, रूल क्या था, एप्पल आनी चाहिए, पर मुझे मिला क्या, ऑरेंज।
क्या गार्गी ने गलत किया? नहीं, उसने ग्रेटिट्यूड में आके, उसने प्यार में आके मुझे एक ऑरेंज दे दिया। ना वो गलत है, ना मेरा रूल गलत है। पर जब मेरा रूल और मेरी रियलिटी मैच नहीं खाती है, तो अब मैं डिस ईज इन द माइंड में हो जाती हूँ, मेरे माइंड में डिस्कम्फर्ट होता है। कुछ 8 to 9 मंथ्स लगते हैं वो डिस ईज माइंड से बॉडी में आने के लिए, यानी मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ की बात करने के लिए। और अब आप डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं। अगर हमने अपने माइंड की सारी डिसईजेस को समझ लिया, पहचान लिया, हील कर लिया ऑन द टाइम, तो हमें फिजिकल डिजीज आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं माइंड साइंसेस, तो उसका एक ही एक रूल है, और वो रूल है सारे रूल तोड़ दीजिए पर नए जरूर बना लीजिए, मॉडिफाई करिए, फ्लेक्सिबल रहिए। सपोज अगर मैंने ये रूल बना लिया कि आज के बाद मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स मेरे लिए एक एप्पल या ऑरेंज, इवन बेटर एप्पल और ऑरेंज लेकर आएंगे, तो अब मेरी रियलिटी मेरे को ईज दे देगी वापस से, मुझे डिस ईज नहीं होगा। सो हियर कम्स द आइडिया कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। अगर पेरेंट्स ने एक रूल बना लिया या माइंड में सोच लिया फॉर एग्जाम्पल कि हमें बच्चों का ध्यान रखना है, अब ठीक है ध्यान रखना इज गुड, पर अगर ये ओवर ध्यान रखना हो गया तो फिर क्या होगा? ओवर यानी कि बच्चों को प्राइवेसी नहीं देना, उनके रूम में बार बार जाके चेकिंग करना, उनके मोबाइल को चेक करना, उनके फ्रेंड्स की चैट को चेक करना। अगर ये सब चलता रहा तो बच्चे में भी डिस ईज आ रहा है, क्योंकि उसको अब अपनी प्राइवेसी नहीं मिल रही है, उसको अपनी स्पेस नहीं मिल रही है। वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे कौन से माइंड से ऑपरेट करना है, मेरे माइंड से या मेरे पेरेंट्स की माइंड से या किसी और के माइंड से। एक जो अपना हार्डवेयर है, जो ब्रेन है, वो ही बॉडी को ऑपरेट करता है। उस बॉडी पे ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर माइंड होता है। सोचिए अगर बच्चा ऑलरेडी घर पे है, उसको फ्रेंड से मिलना नहीं हो रहा, वो ये जो स्कूल वाली एज है वो अपनी आइडेंटिटी बना रहा होता है, वो अपने लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह वगैरह ढूंढ रहा होता है। अगर ये सब चीजें उसको अपनी प्राइवेसी में नहीं मिल रही हैं इस समय पे, कोरोना के टाइम पे, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो एट डिस ईज जाएगा। तो हाई टाइम है, आप चेक करिए, पर एक फ्रेंड बनिए। किन किन बातों को लेके बात करें? मेरे पास आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं, ये मैं इसी वजह से ये पॉइंट आज यहाँ उठा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब उनकी प्राइवेसी नहीं मिल रही है। क्योंकि फ्रेंड से तो वो बात वैसे ही पहले फेस टू फेस कर पा रहे थे, पर अब वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल उनके हाथ में है या इंटरनेट उनके हाथ में है। और इस ड्यूरेशन में अब पेरेंट्स आके वहाँ पे फुल टाइम चेकिंग कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो या मोबाइल्स पे क्या चल रहा है। आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स की वरी, कहीं वो पॉर्न तो नहीं देख रहा, कहीं वो गलत संगत में तो नहीं चला गया, कहीं गंदी बातें तो नहीं कर रहा। ये सब होना वाजिब है, पर इसको आपको कैसे कम्युनिकेट करना है अपने बच्चे के साथ में, वो सीखने की जरूरत है। आप रेस्ट्रिक्ट मत करिए उसे, नहीं तो वो भी डिस ईज में जाएगा और आप भी डिस ईज में ही आएंगे। हमें इस पॉइंट को भी यहाँ से समझना होगा। Any question on to this slide? तो एक चीज तय है, ईज में रहना है तो रूल्स को मॉडिफाई करना होगा। थोड़ा सिस्टम पेरेंट्स और मदर एंड फादर के बीच या ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के बीच कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट बनना चाहते हैं ताकि बच्चे को कुछ सिखा सकें, पर ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के उनको बड़ा लाड़ प्यार कर रहे होते हैं, तो बच्चा उसमें भी कंफ्यूज मिक्स मैसेजेस में चले जाता है। बच्चे को नहीं समझ आता कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, कि मैं मम्मी पापा की सुनूं या मैं उनसे बड़े जो हैं दादा दादी उनकी सुनूं। ये थोड़ा सा फैमिली का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस का। एक निर्णय तय करना है, अच्छा हमें बच्चे को ये सिखाना है तो हमें ये सारे पहले रूल्स तय करने होंगे अपने आप में ही, और उसके बाद वो बच्चा अगर अच्छा कुछ करता है तो हमें उसको रिवॉर्ड देना है। टोकन इकोनॉमी, टोकन्स बना लीजिए। पहले बच्चे के साथ बैठिए, उसको बोलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, अगर तुमने इस समय पे उठ गए, इस समय पे ब्रश कर लिया, इस समय पे तैयार हो गए, इस समय पे क्लास अटेंड करी और इस समय पे पढ़ाई कर ली और इतनी पढ़ाई कर ली, हर एक काम के लिए तुम्हें एक एक टोकन मिलेगा।
अगर तुमने 15 या 20 टोकन इकट्ठे कर लिए तो इतने टोकन इकट्ठे जब हो जाएंगे तो अब उस बच्चे को उसका फेवरेट जो भी उसको चाहिए, चॉकलेट या बाहर आउटिंग या कुछ भी रिवॉर्ड, वो दे दीजिए। एक बात क्लियर कर लीजिए, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो तुम्हारा टोकन, एक टोकन वापस ले लिया जाएगा। इस तरह से क्या है, आप चेक कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो हम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन एंग्री पर्सन, चिल्ला के डांट के, वो सब गए जमाने। क्या होता है कि अगर हम पेरेंट्स कुछ बच्चों को समझा रहे हैं, वो अपने बड़े पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं, जबकि बच्चे का माइंड छोटा है, वो स्पॉन्ज है, वो अपने पर्सपेक्टिव से समझ रहा है। अब यही बच्चा जब बड़ा होगा, बच्चा क्योंकि छोटा है, उसको लगता है कि मैं मेरे माँ बाप को कुछ बोल नहीं सकता ना, मैं मेरे माँ बाप को नहीं बोल सकता, मैं उनको दोबारा पलट के आंसर नहीं दे सकता। कई बार ऐसा होता है। बड़े जब बच्चे होने लगते हैं तब तो वो डेफिनेटली चिल्ला के दोबारा बोलते हैं, तब तक वो एंग्री हो चुके होते हैं। पर अगर छोटा बच्चा है, राइट, तो क्या होगा, वो उनको ऐसा कुछ करके दिखाएगा जो उन्हीं को हर्ट करेगा। लाइक ये 3 ईगो स्टेट्स है जो सभी लोग कैरी करते हैं। एक पेरेंट ईगो स्टेट होता है, एक चाइल्ड ईगो स्टेट होता है, एक होता है अडल्ट ईगो स्टेट। अगर पेरेंट्स की कोई बात बच्चे को नहीं समझ आए, प्लीज म्यूट कर लीजिए आर्यन, थैंक यू। अगर पेरेंट की कोई भी बात बच्चे को नहीं समझ आए, अब उसका सबकॉन्शियस कैसे, नोइंगली नहीं करेगा, ये अननोइंगली हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है। वो अब जितने उसको आंसर्स आते होंगे, अगर वो सारे लिखाएगा तो प्रोबेबली वो टॉप कर जाएगा। पर ये वो बच्चा होगा जो 1 या 2 आंसर छोड़ आएगा। क्यों? अगर वो टॉप कर गया तो किसको सबसे ज्यादा खुशी होगी उसके बाद? उसके पेरेंट्स को। और पेरेंट्स से तो अंदर पीछे ही चाइल्ड और पेरेंट स्टेट का झगड़ा है, उन्हें वो खुश नहीं होने देगा। ये अभी छोटा लग रहा है, और जैसे से हम बड़े होते हैं, लाइक 35, 45, उस कैटेगरी के लोग भी मेरे पास आते हैं। वो ये वो लोग हैं जो बहुत शार्प हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ही सैबोटैज करना सीखा है। दे आर वेरी ईमो पीपल, इनका ब्रेन ज्यादा चलता है, माइंड ज्यादा प्रोसेसिंग, लेफ्ट ब्रेन और कॉन्शियस माइंड ज्यादा प्रोसेसिंग करता है। वो क्या करेंगे, अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे, अच्छी कंपनीज में पहुंच जाएंगे, पर अच्छी कंपनी में, अच्छी डेजिग्नेशन में पहुंच के भी वो खुश नहीं होंगे। वो एक जॉब दूसरी जॉब पे पहुंचेंगे, दूसरी से तीसरी पे पहुंचेंगे, तीसरी से चौथी पे पहुंचेंगे। अगर पीछे फादर के साथ में ये पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है, तो अगर फादर के साथ में कुछ इशू है तो बचपन में, ठीक है, अगर मदर के साथ में इशू हुआ तो रिलेशनशिप में दे विल नॉट डू गुड। अच्छी रिलेशनशिप चलेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेंगे जाके, वही हम खुश हो गए तो क्या होगा, माँ को खुशी मिल जाएगी, और पीछे बच्चा क्या कह रहा है, ऐसा तो होता को ना, आई कैन नॉट लेट हर बी हैप्पी। सो सेल्फ सैबोटैज बिहेवियर है। प्रेजेंट में अडल्ट सैबोटैज कर रहा है अपने आप को, और उसको पता भी नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि पीछे पेरेंट और चाइल्ड स्टेट का झगड़ा हो रखा है। और अगर हमें एक हेल्दी सोसाइटी बनानी है तो हमें हेल्दी बच्चों को बनाना होगा। अगर बच्चे ही हेल्दी बन गए तो कोई ब्रोकन अडल्ट नहीं आएगा। हमें वहां से इसको समझना है। तो किस तरह से हमें पेरेंट्स को बच्चों से बातचीत करनी है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है। पेरेंटिंग के बहुत वर्कशॉप्स होते हैं, आई एम श्योर काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो अटेंड भी करते होंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी सी साइट, एक यूट्यूब का चैनल मुझे कल मिला, विच इज़ कॉल्ड प्लान्ड पेरेंटहुड। अगर आप वो भी चेक करते हैं तो काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे आप उनको पॉर्न नहीं देखना है, या सेक्सुअलिटी कैसे समझानी है, या रिलेशनशिप में वो कैसे बिहेव करें, उन सब के बारे में वो छोटे छोटे वीडियो से एक्सप्लेनेशन है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स वहां जाकर समझ सकते हैं कि बच्चों को एट ईज कैसे रखना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? मैम, यस सर। मैम, I am a 16-year-old child of 10th class. Okay. And ma'am, I am asking that what can I do that I cannot get this ease because of my parents. So what can I prevent and make them happy and also be happy with me? आती हूँ आयुष, मैं तुम्हारे पॉइंट पे आती हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। ओके Okay, ma'am. ऑलराइट, now let's come to another slide here.
ओके जब डिसईज हुआ तो क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। पहले अलार्म बजता है अगर स्ट्रेसेस हमारी लाइफ में होते हैं, अलार्म रिएक्शन से अगर स्ट्रेसेस इंक्रीज कर रहे हैं, हमने लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया, हमने माइंडसेट्स नहीं चेंज किए, तो वो स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस स्टेज 2 में चले जाता है, जहाँ पे बॉडी से फाइटिंग केमिकल्स वगैरह वो सब रिलीज होने शुरू होते हैं। यहाँ पे बॉडी रेजिस्ट कर रहा है कि स्ट्रेस खत्म हो जाए, पर स्ट्रेस अगर नहीं खत्म होता है तो हम स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं। वो होती है स्टेज ऑफ एग्जॉशन, जहाँ पे कंप्लीट बर्नआउट हो जाता है, बॉडी ब्रेकडाउन शुरू होता है। ये सब कैसे होता है, जब हमने रूल्स बना लिए, सिस्टम्स बनेंगे, सिस्टम के बनते इनहिबिशन होगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मुझे करने नहीं दिया जा रहा, इनहिबिट किया जा रहा है, या मैं खुद ही इनहिबिट फील कर रहा हूँ। अब इनहिबिट फील करते हो तो अंदर इंटरनलाइज करने लगोगे, और जितना ज्यादा इंटरनलाइज हम करते जाते हैं, धीरे धीरे हम ब्रेक डाउन पे आ जाते हैं। और ये ब्रेक डाउन, ये हमारी स्टेज ऑफ एग्जॉशन है, द थर्ड स्टेज, जहां पर ट्यूमर, कैंसर, कार्डियक अरेस्ट, माइग्रेन, हेडेक एंड XYZ चीजें शुरू हो जाती हैं। ये हमें क्लियरली समझना है। ये जो डिसईज जो माइंड में है वो बॉडी पे इस तरह से उतरती है। मेंटल हेल्थ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जर्नी है। जैसे आयुष्मान ने पूछा क्या है, फ्रॉम स्ट्रेस टू हैप्पीनेस, तो हैप्पी कैसे रहना है हमें अब ये समझना है। तो अगर कोई भी पास्ट इवेंट हुआ, अगर हम अर्थ स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जी रहे हैं। यही टाइमलाइन है, बियॉन्ड अर्थ कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई टाइम और स्पेस नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि हम आए हैं तो हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में ही जीना पड़ता है। अगर मैं पास्ट इवेंट की बात करती हूँ तो 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक हो गई सिचुएशन, कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ क्या मैं सिचुएशन चेंज कर सकती हूँ? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि सिचुएशन तो पास्ट की है, अब वो बदली नहीं जा सकती। लाइक मैंने किसी पे झगड़ा कर दिया, पेरेंट्स पे चिल्ला दिया गुस्से में आके, क्या अब मैं उसको बदल सकती हूँ? डेफिनेटली नॉट, दैट इज ओवर। चिल्ला के खत्म हो चुका, अब नहीं चुप हो सकते तुम, अब तुम बस सॉरी ही मांग सकते हो। पास्ट को नहीं बदल पाओगे, सिचुएशन नहीं बदलेगी। दूसरा, अदर्स, पास्ट इवेंट में दूसरे यानी कि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स। कितनी कोशिश कर लो, क्या तुम इन लोगों को भी बदल सकते हो? नहीं। जैसे एक एक डॉटर इन लॉ सोचती है कि अगले दिन मैं उठूं और मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल चेंज्ड मिल जाए, नहीं पॉसिबल है प्रैक्टिकली। इवन बेटर वो उठे ही ना, वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट? सिमिलरली विद हमारे पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, नहीं पॉसिबल। तो सिचुएशन और अदर्स तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ परसेप्चुअल इल्यूजन्स हैं। यानी कि मैं सोच रही हूँ कि ये सिचुएशन बदल जाए या दूसरे लोग बदल जाए, वो होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक जना मेरे हाथ में है, और वो है मैं खुद, यानी कि सेल्फ। जब सेल्फ ने डिफरेंट थॉट्स पकड़े तो डिफरेंट रियलिटी बनेगी, ये याद रखना है। फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है? द इनेट नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इज टू ड्रिफ्ट अवे। वो प्रेजेंट में नहीं रहती है, वो या तो पास्ट में रहती है या वो फ्यूचर में रहती है। हम बीच में, प्रेजेंट में कभी भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। पर अगर हम प्रेजेंट में आ गए, टेल मी वन थिंग, क्या मेरे और आपके बीच में कोई भी पंगा है? पंगा नहीं है तो हम खुश हैं, राइट? सो अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और यहाँ प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अब नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, you cannot reach the future because the highest degree of your consciousness lies in the present. सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स जाएंगे, आपकी बॉडी कभी फ्यूचर में नहीं जाएगी, क्योंकि जो फ्यूचर आने वाला है आपकी बॉडी समेत ही आएगा, यानी वो भी प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं बहुत लंबे पीरियड की बात नहीं कर रही। जैसे हमने ये वेबिनार शुरू किया आज, तो वो भी अब पास्ट हो चुका है, और ये वेबिनार खत्म होगा, वो भी फ्यूचर है। At this moment, what I am doing, where I am, that is the present. Okay? So understand, future कभी नहीं आने वाला और ना ही हम कभी पहुंचेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में प्लान करके छोड़ सकते हैं। अब यहाँ बैठ के अगर 16 की एज पे आप ये सोच रहे हो कि आप फ्यूचर में, यानी कि 2021 में टिस मुंबई में जाके पढ़ने लग जाओ, नॉट पॉसिबल।
आप अभी यहाँ अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप फ्यूचर चले गए, आपने वहीं का जीना शुरू कर दिया, वहीं उसी हिसाब से रहना शुरू कर दिया, प्रेजेंट में आपने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, क्या आप कभी भी टेस्ट मुंबई पहुंच पाओगे? डेफिनेटली नॉट। तो आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, प्लान करके उसको साइड में रख देना पड़ेगा, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। वेरी क्लियर। और उसी के बारे में सोचते रहे तो नहीं कर पाओगे। क्या आप प्रिडिक्शन कर सकते हो? सॉरी, आई डोंट बिलीव इन प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारी चॉइस और कॉन्सिक्वेंस है। हर मोमेंट में वी हैव मिलियंस ऑफ रियलिटीज जहां से हम अपनी रियलिटी चूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है फिर? प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक चॉइस ले लेते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस हमें झेलने पड़ते हैं। हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंस पहले नहीं पता होते, पर चॉइस ले ली तो कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा। अगर ये सोच लिया कि मुझे बॉलीवुड में ही जाना है, तो आप अभी चूज तो कर लिया आपने बॉलीवुड में जाना, वहां जाके जो स्ट्रगल है, रियल लाइफ स्ट्रगल है, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है, वो आएगा ही आएगा। फिर भी अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ आया तो चॉइस बदल लो, थिएटर में आ जाओ, कुछ भी हो सकता है। अब थिएटर का अलग कॉन्सिक्वेंस होगा, कम पैसे मिलेंगे पर शांतिपूर्वक काम करोगे, खुशीपूर्वक काम करोगे। हो सकता है थिएटर भी कर लो, उसके साथ में अपना कोई बिजनेस डाल लो, ये भी हो सकता है, राइट? तो हर चॉइस का अपना कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ में आया, चॉइस बदल डालो। दैट इज हाउ लाइफ मूव्स ऑन। प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं कौन से वाले थॉट पे एनर्जी डाल रही हूँ और कब डाल रही हूँ, क्योंकि थॉट मेरा रियलिटी बना रहा है। एंड दिस इज हाउ वी आर राइटिंग आवर डेस्टिनीज डे इन डे आउट। थॉट टू रियलिटी, जो मैंने स्लाइड 3 बताया था। तो फ्लिप करके देखते हैं कि करना क्या है। अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में ना मैं पहुंची हूं ना अदर्स पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन पहुंची है। वो सिचुएशन भी अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी हमको एक इमोशन देती है, वो है एंजाइटी का इमोशन। एंजाइटी के पीछे फियर कोर इमोशन होता है। फियर कैसे डील करना है? अंडरस्टैंड फियर इज नथिंग बट अ फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल टू यू। वो सच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसके लिए हमें मेजर्स लेने हैं। जैसे हमें समझ में आया कि कोरोना है, सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक हो रही है, तो हमने क्या किया कि हमें कोरोना ना लगे, हमने घर से पढ़ना शुरू किया, राइट? तो हमने ये एक मेजर लिया कि घर से पढ़िए, कम से कम बाहर जाइए, हाथ ज्यादा धोइए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, बाकी ऑनलाइन वगैरह जो भी करना है वो कर लीजिए। 80% मेजर्स वी टुक एंड देन वी सरेंडर्ड। अब तो होना है तो देखी जाएगी तब। पर अगर मैं ये कह देती हूँ कि आप तो सरेंडर कर दो, आप तो खुदा के बंदे हो, कुछ नहीं होगा, तो अब यहाँ से प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप 80% टाइम तो सरेंडर कर रहे हो और 20% टाइम मेजर्स ले रहे हो। पॉसिबिलिटी नहीं है। डेफिनेटली आप कोरोना की सिचुएशन में जाओगे जाओगे। पर स्टेप 1 क्या है? जब भी फियर आए, चाहे वो एग्जाम्स को लेकर हो, चाहे किसी रिलेशनशिप को लूज करने को लेके हो, चाहे फाइनेंसेस को लूज करने को लेके ही क्यों ना हो, आपको सबसे पहले अपना मेजर्स लेना है, यानी प्लान करना है, और फिर सरेंडर कर डालिए। प्लान करके सरेंडर जरूर करिए, क्योंकि नहीं तो आप फ्यूचर की प्रॉब्लम में ही घूम रहे हैं। और जब सरेंडर कर दिया तो आप वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जब इतना समझ लिया, एफर्मेशन आप कर सकते हैं, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी वे, माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। 21 टाइम्स करिए इस एफर्मेशन को 21 डेज के लिए, सोने से पहले, और फिर देखिए जिंदगी में बदलाव, क्योंकि अब आप नए थॉट पे एनर्जी डाल रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द पास्ट। अगर पास्ट में हमारे साथ कुछ हो गया तो 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैंने बताया, एक खुद, जब हमें खुद पे गुस्सा आता है तो ये गिल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है या रिग्रेट के रूप में प्रेजेंट होता है। जब भी जिस भी मोमेंट पे गिल्ट आए, ये समझना है कि विजडम ग्रोज विद एज। अगर मैंने कुछ स्टेप लिया पास्ट में और आज मैं वाइजर हूँ, आज मैं बड़ी हूँ उस पॉइंट को लेके, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि उस मोमेंट पे मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा, जो मुझे बेस्ट ऑप्शन दिखा, और उस मोमेंट की वजह से आज मैं वाइजर हूँ। नहीं तो शायद मैं वाइजर होती नहीं ना। 10 साल पहले अगर मैंने कुछ कर दिया, उसको लेके मैं परेशान बैठी हूँ, तो शायद मैं आज इस मोमेंट पे नहीं बैठी होती। तो हर स्टेप पे वी आर गेटिंग वाइजर एंड वाइजर। डेफिनेटली आज वाली कविता, वो जो कल वाली कविता ने किया है, वो नहीं करती,
क्योंकि वो अब वाइजर है। तो ये समझना है कि वो जो कल वाली कविता थी वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय टाइप रोल प्ले करके गई है। यानी कि जो पिज्जा हमें डिलीवर करता है रोल, एक पड़ाव से हमारी लाइफ में दूसरे पड़ाव तक पहुंचने का। अगर आपने जिंदगी में ऐसा कुछ किया कि आपने कम पढ़ाई करी, कम मार्क्स आए, या पेरेंट्स को आपने कुछ भी बोल दिया और फिर गिल्ट हो रहा है, तो समझिए, अपने आप को माफ करिए सबसे पहले कि उस समय हमें यही सही लगा, पर अब हम शायद ही नहीं करेंगे क्योंकि अब हम वाइजर हैं। ठीक है, तो विजडम ग्रोज विद एज। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, से टू योरसेल्फ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। पर पहले कहानी को समझना पड़ेगा, पहले अवेयरनेस लानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये अफर्मेशन काम करेगा। 21 टाइम्स 21 डेज आप इसको करिए। ये जब आप करेंगे तो गिल्ट से बाहर आ जाएंगे, यानी कि पास से बाहर आ जाएंगे, और प्रेजेंट में कैसे बिहेव करना है पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने या खुद के साथ, वो सब आप सीख जाएंगे। सेल्फ फॉरगिवनेस आप अपने आप को दे पाएंगे अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया। दूसरा है कि अदर्स पहुंचते हैं, दूसरे जने, सॉरी, जब पास्ट में आ रहे हैं तो अदर्स पे भी गुस्सा आता है। जब अदर्स पे गुस्सा आता है तो वो एंगर के रूप में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ ये समझने की बात है कि हम सड़क चलते हुए व्यक्ति पे कभी भी गुस्सा नहीं करते। हम किन पे गुस्सा करते हैं? जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमें पता है वही वो लोग हैं जो हमें समझ पाएंगे। अगर पेरेंट्स आप पे गुस्सा कर रहे हैं, समझिए वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपसे अगर कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा है और आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स, या आपके टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर वर्थ द एक्सपेक्टेशन। तो यू शुड बी थैंकफुल ना। आप अपने आप को तो वर्दी नहीं समझ रहे हो, पर पेरेंट्स और टीचर्स तो समझ ही रहे हैं। देन थैंक देम इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट विद देम। अंडरस्टैंड व्हाट आर दे आस्किंग यू टू डू। इफ दे आर गेटिंग अपसेट विद यू, इफ दे आर एंग्री विद यू, फिगर आउट व्हाट इज योर लेसन। वो यही तो चाह रहे हैं ना कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लो, तो कर लो ना। बुराई कहाँ है? उस लेसन को समझो। या आपको किसी पे भी गुस्सा आ रहा है तो ये समझो कि कोई भी इंसान, व्यक्ति है, वो आपको कभी भी गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप ही ने उसको कंट्रोल नहीं दिया। यानी कि आप भी उस इंसान से प्यार जरूर करते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही किसी को भी कंट्रोल नहीं देते, राइट? तो लेसन समझिए। जो लेसन समझा वो लेसन आपको वाइजर बनाएगा। लेसन जिस दिन समझ लिया तो सारी सिचुएशन बदल जाती है, ठीक है? और जब इतना समझ आ गया तो दूसरों को फॉरगिव करना, माफ करना बहुत आसान हो जाता है। एंड बिलीव मी, अगर आप किसी को जज कर रहे हैं या किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो फाइल आप ही के माइंड में बन रही है, और आप ही के कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस में जा रही है, और एंगर का इमोशन अटैच हो रहा है। द अदर पर्सन इज नॉट एन एंग्री पर्सन, यू आर ओनली एट दिस ईज। You become an angry man or angry woman, right? So you need to forgive them, not for them, but for your own benefit. But believe me, once you forgive, then you can do the affirmation, which is, I love and accept others as they are, or other person as he or she is. पास्ट में होती है सिचुएशन। अब सिचुएशन को लेके आप कुछ भी कर लीजिए, आप चेंज नहीं कर सकते, और चेंज नहीं कर सकते और उस पर गुस्सा आ रहा है तो इंटरनली आप हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं, और ये दिखाई भी हेल्पलेसनेस के रूप में दे रहा है। और हिंदी मूवीज का एक गाना है, जब आप खुद बेसहारा हैं तो किसी और का सहारा बनिए। When we help others around, when we are in helplessness zone, then we gain empowerment. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा चैप्टर नहीं आता, मेरे को एग्जाम देना है, मुझे नहीं आता, पर मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि मुझे ये पढ़ा दे, तो क्या मैं उसको पढ़ाने के लिए खुद नहीं पढ़ूंगी? पहले उसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता था, एम्पावर्ड हो जाऊंगी, राइट? और जब मैं एम्पावर्ड हूँ तो मैं डेफिनेटली वापस पास से प्रेजेंट में आ जाऊंगी, राइट? और सिचुएशन को लेके एक ही एफर्मेशन है, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी वे, माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये हम पास्ट के साथ कर सकते हैं। अब ये समझना है, जब पास्ट और फ्यूचर की इमोशन को हमने वहां पे से कॉन्शियसनेस को वापस प्रेजेंट में ले आए, लेसन समझ के, एफर्मेशंस करके हम प्रेजेंट में आ गए, तो प्रेजेंट में हमें क्या करना है? मॉडिफाई करने रूल्स को, ताकि हम एट ईज रहें। दूसरा पॉइंट, अगर हम नाव में हैं तो नाव में कुछ नहीं है, हैप्पीनेस है, तो इस तरह से हम स्ट्रेस से हैप्पीनेस में वापस आ सकते हैं। तीसरा, ये समझना है कि हमें राइट मेजर में लव करना सीखना है।
हमें डिटैचमेंट नहीं सीखना है। पता है क्या होता है, हम दुनिया में सोच रहे होते हैं अरे वो मेरे को बहुत पेन दे रहा है तो मुझे डिटैच हो जाना है, या ये प्रॉब्लम मुझे बड़ा पेन दे रही है मुझे डिटैच हो जाना है, मुझे मैथ्स का सब्जेक्ट बड़ा पेन दे रहा है तो मुझे डिटैच हो जाना है, मुझे अलग ही हट जाना है। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें ये समझना है कि हमें उस चीज को या उस इंसान को या अपने आप को राइट मेजर में लव कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने लव करना सीख लिया तो आपने सारी इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया, फिर आप भागोगे नहीं, फिर आप उसके लिए बदलने के लिए तैयार हो जाओगे, खुद में चेंजेस, खुद के लेसन्स पूरे करते जाओगे। तो डिटैचमेंट आपका लेसन नहीं है, हम अर्थ स्कूल पे लव सीखने आ रहे हैं, क्योंकि लव है तो सारी इमोशंस हैं, लव है तो जेलसी है, हेट्रेट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है। ठीक है, तो लव करना ही सीख जाओ ना यार, समझ जाओ कि करना क्या है। मैथ से, साइंस से, आपके सब्जेक्ट से, आपकी टीचर से, यू नीड टू मूव आउट। राइट मेजर में कैसे लव करना है बस वो समझना है, चाहे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, चाहे टीचर्स हो, इतनी सी बात है। ठीक है, सो आई गेस इस तरह से आप अपने इमोशंस को, पास्ट, फ्यूचर को और प्रेजेंट को मैनेज कर सकते हो। और प्रेजेंट में अगर आप हैप्पी हो तो आप हेल्दी हो, डिसईज ना माइंड में रहेगा ना बॉडी पे आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो ये हम जरूर कर सकते हैं। आई गेस हमारा टाइम अप हो गया है, तो बट देन इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ वेरी क्विक एक्टिविटी जो कि मैम 1 मिनट बच्चे, एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं जो कि कंसंट्रेशन या स्लीप इश्यूज या एंगर या किसी भी चीज को लेके काम आ सकती है। ये फर्स्ट एड है हर थेरेपी के लिए। तो अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे या सो नहीं पा रहे या लड़ाई ज्यादा हो रही है, सबको मैनेज कर सकती है, पर मुझे इसके लिए एक जना चाहिएगा पार्टिसिपेशन के लिए, डेमो के लिए। सो एक वॉलंटियर अपना नाम बता दे तो हम उसके साथ कर सकते हैं। मैम ओके, आयुष्मान, ठीक है। सो पहले मैं ये टीएस मीना जो भी मेरे को दिखा रहा है उससे पूछ लेती हूँ, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन आई गेस। टीएस सागर, यस सागर, यस सागर। मैम कल होगी क्या कोचिंग? शाम को कोचिंग मैम 5 o'clock। Beta Sagar, what do you want to say? Your coaching is there at 5 o'clock. Yes, you can leave, beta. You can join your coaching, beta. Yes, You ma'am. can leave and you can join your coaching. Actually, he's having the coaching class and he's asking to leave. Yeah, beta. Yes, you can leave, bacha. दिस इज सो स्वीट। पता है हम लोग अब ना बड़े बड़ों को पढ़ाते हैं, सारा ट्रेनिंग एंड ऑल सब कुछ, तो वो अपने आप एग्जिट मार जाते हैं, ऐसे कोई परमिशन नहीं लेता। ओके, या आई नो, so nice to have have this requesting onto this window of mine. I'm liking it. Okay, काफी दिनों बाद मेरे को सुनने में आया है ऐसा। All right, Ayushman. Yes, ma'am. All right. So what you need to do here is, am I visible to you, Ayushman? Yes, ma'am. Perfect. So आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट पाम आप लेंगे और राइट के 3, आप मुझे अपना वीडियो ऑन करके बता सकते हैं? Yes, ma'am. Wait a second. Yes. On your video, beta. Yes, ma'am. Wait a second. And शुभ, आप भी करो, शुभ मिश्रा, आप भी करो। मैम क्या बोल रही हैं? All the children. Yes, ma'am is telling something important. Yes, Ayushman, you fast, bacha. Yes, ma'am. Keep your video on mode. Ayush. You must be clearing your, area, huh? Must be, limestone, books and all. Doesn't matter. Yes, ma'am. Ma'am, I am Are you- setting my camera. No need of setting up. You just, Okay, ma'am. Because we are running short of time. Already we are running short of time. Yes, ma'am. Yajat, if you can mute yourself. Thank you.
Ayushman, are you there? Yes, ma'am. तो शक्ल दिखा दो भाई. Ma'am, am I visible, ma'am? नहीं, we can't see you, Ayushman. Connecting to camera, we can see. And my camera is not working. Then I guess आप स्क्रीन के पीछे करिए. मुझे कोई और वॉलंटियर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, उनमें से हम पिक कर सकते हैं. Gargi, would you like to give it a try? Yeah, You sure. can take Gargi ma'am. Yes, Gargi Yeah. ma'am. Yeah. Ayushman, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज. Okay. Ayushman, you follow the instructions given by ma'am. Yeah. Yes. Okay. So Yes, ma'am. first understand that the therapy, which is a first aid of all the therapies, if I give you this today, you can use it with any and every problem. Be it headache, be it any pain, or be it sleeping issues, be it concentration, कुछ के साथ में भी हम use कर सकते हैं, ठीक है? And it's very quick. It works really well. So you have to, Gargi, take up your left palm. Ayushman, you can also take up your left palm. Okay, before this, tell me if there is any issue, Gargi, that you're having any pain, any emotional disturbance or anything? A bit of stress. Stress, perfect. So Ayushman, what is your issue? Ma'am, I am suffering from small depression or Okay. stress. ठीक है, स्ट्रेस तो हम स्ट्रेस को लेके बात करेंगे. म्यूट कर दीजिए. ऑलराइट, सो लेफ्ट पाम एंड राइट 3 फिंगर्स, पॉइंटिंग, मिडिल एंड द रिंग फिंगर. सो इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है? लुक एट गार्गी, आयुष्मान. या ओके, सो यू कैन कीप इट कंफर्टेबली डाउन एंड देन ये हम कुछ एक स्टेटमेंट होगी जो मैं 3 बार बोलूंगी. यजल, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. आई विल से द स्टेटमेंट थ्राइस and you will, Gargi, you will be repeating after me. Ayushman, आप म्यूट पे रह के रिपीट कर लीजिएगा. ओके, इज दैट क्लियर, Gargi? Yes, ma'am. Perfect. And then I will ask you to put your hands on your thymus gland and blow off 7 times. Once you blow off 7 times, then we will check the number again. Okay, so close your eyes first and tell me what is the level of stress, 0 to 10. 10 maximum, 0 minimum. 4 or 5. Perfect. Ayushman, what is your number for stress? Ma'am, approximately 7 or 8. Give me one number, 7 or 8. Ma'am, 8. Perfect. Mute yourself. Okay. So Gargi, are you there? Yes, ma'am. All right. Perfect. So let's start. Even though, keep rotating your fingers and close your eyes and repeat after me. Even though Even though I am feeling stressed, I am feeling stressed, I still choose to I still choose to heal and integrate heal and integrate that part of me. that part of me. I love and accept myself I love and accept myself exactly as I am. exactly as I am. Even though I have the stress, I have the stress, I still choose to I still choose to heal and integrate heal and integrate that part of me. that part of me. I love and accept myself I love and accept myself exactly as I am. exactly as I am. Even though I have the stress, I have the stress, I still choose to I still choose to heal and integrate heal and integrate that part of me. that part of me. I love and accept myself I love and accept myself exactly as I am. exactly as I am. Put your hands on your thymus gland and blow off 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One last time. Perfect. Now tell me the number from 0 to 10. Where is it? I think 3, somewhere like I'm feeling very relaxed and very confident about myself. Perfect. 3. Super. Ayush, what's your number?
Ma'am, I am feeling very stressed, very free now. Give me 0 to 10. What's the number of the stress? Ma'am, 4. Perfect. Close your eyes, both of you. Ayush, you can mute yourself. We'll do it one more time. Even though, start repeating, Gargi. Even though There is some benefit there is some benefit behind this stress, behind the stress, I still choose to I still choose to heal and integrate heal and integrate that part of me. that part of me, Ayush, you to do the same. Even though even though there is some benefit there is some benefit behind the stress, behind the stress, and I have no clue and I have no clue what the benefit is, what the benefit is, I still choose to I still choose to heal and integrate heal and integrate that part of me. that part of me, I love and accept myself I love and accept myself exactly as I am, exactly as I am. even Even though I acknowledge the benefit I acknowledge the benefit behind this stress, behind the stress, I still choose to I still choose to heal and integrate heal and integrate all the parts of me. all the parts of me. I love and accept myself I love and accept myself exactly as I am. exactly as I am. Put your hands on your thymus gland and blow off 7 times. 1. Deep lung filling breaths, Ayush. 2. 3. 4. 5. 6. And one last time. Awesome. Yes, Kargi, give me the number 0 to 10. Where is it? 1. Super. Ayush, Man. I'm 2. Super. So Ayush, you repeat this one more time on your own after I keep the, after I end this webinar. We leave it on 0 or 1. Why 1? Because we need to check what is it that is troubling us, what is it that is giving this ease in the mind, okay? And then we can release it. And this works really awesome, okay? Even with the air pressure that we get from, Ayush, please mute yourself. Even with the air pressure that we have in our ears while taking the flight, वो तभी भी उसको भी रिलीज कर देता है, ठीक है? So that's too quick. All right, so I guess with this I finish the webinar. If there are more questions, you're welcome. Excuse me, ma'am. Ishan, yes. Yeah, sorry, ma'am. But I want to ask you a question. Yes. That You should be, actually- Ishan, instead of saying sorry, say thank you, ma'am, for giving me the chance to ask the question. Now ask. Don't say Okay. sorry. A lot of sorry. Okay. This is our, Okay, if we keep okay. on saying sorry, when will we live? Yeah. Yeah. So, may I carry on? Yes, please. Yeah. So, I want to ask that how this mantra work on our body. So this is not a mantra, this is called the emotional management technique. So you must have heard about the vaccinations that we give to the small children, right? Yes. So it's like increasing, हम उसी बीमारी का वैक्सीनेशन लगाते हैं ताकि हमारे पास फाइटिंग एजेंट्स हो जाएं, ठीक है? Okay. So this is called emotional management technique. So we are increasing the issue and then blowing it off. तो Okay. बॉडी का जो डिस्कम्फर्ट है, डिसईज है, जो एनर्जी बॉडी में है, वो ब्लो ऑफ हो जाता है एंड देन वी आर बैक टू ईज. Okay. Okay? Okay. Okay. Thank you very much, ma'am. You're welcome. Any other question? Kavita ma'am, one thing I want to ask you, like the things which you are talking about when we are doing this exercise, can you give something in Hindi also so that all the, parents and the children, those who are unable to remember, otherwise they will be in stress ki, oh my God, I should have taken that, I should have written somewhere. कुछ ऐसा जो उन्हें याद भी रहे. So,
मैं या तो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजती हूँ या आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन तो मैं बोल देती हूँ। हालांकि मुझे जो भी डैश है वो प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं चयन करती हूँ अपने आप को स्वस्थ एवं एकत्रित करने के लिए। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को पूर्णतया स्वीकार करती हूँ। ये स्टेटमेंट है। So, I mean, this statement can be, I mean, given in this way, ki, okay, I'm feeling, I mean, having this stress, but I can overcome it or I can control it. Somewhere, I mean, something like that. प्रमिला मैम, कंट्रोल तो कुछ करना ही नहीं है इतने, इधर Okay. सब मैनेज करना है। पता है कंट्रोल But क्या होता है? manage, okay. कंट्रोल करते हुए अंदर जाता है, फिर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, हमें उधर से निकलना है। It is manage. Okay. The Yes. word should be used manage. Yes, Fine. है ना? So we work a lot with the power of words because each word has its own frequency और वो माइंड में ही जाता है, वो उसको हिला देता है फिर, है ना? That's good. That's जी। good. Yes. तो यही समझना है जो भी प्रॉब्लम है, हालांकि मुझे ये फील हो रही है, फिर भी मैं चयन कर रही हूँ, यानी द चॉइस इज इन माय हैंड। मैं एम्पावर्ड हूँ उसको हील करने के लिए और अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस एकत्रित करने के लिए, और मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। दैट इज ऑल। That's good. That's good. या Yes, Gargi. Thank you, ma'am. Indeed, it was a wonderful and full of cognizant session, and it looks like we have covered all of our questions. And on the demand by many SRNs and the SRN parents, we are having a recorded version of this webinar, which will be soon available on the official YouTube channel of SRN International School. So all of you can access the same anytime, anywhere. And now I would like to invite our respected Vice Principal, Pramila ma'am, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. First of all, let me tell you one most important thing, that our respected principal ma'am wanted to attend this session, but she is attending an important CBSE webinar. That is the reason she is not here with us. She is attending an important CBSE webinar. On behalf of SRN fraternity, I would like to propose hearty vote of thanks to Ma'am Kavita Bhargav. Really very informative webinar he has given us. And many of the students, practically they are here and they were doing the exercise, they were doing the activity, they were taking keen interest. Really, it was very, very informative webinar. Thanks to our distinguished speaker, Dr. Kavita Bhargav, for making this webinar interesting and meaningful by sharing your valuable thoughts and solving the queries also. From the bottom of my heart, to all our most valued parents, presence who made this webinar a great success. Even the presence of children are here. That's wonderful. Your participation and suggestions always help us. I would like to express our gratitude to our respected school leaders and especially our headmistress Pallavi ma'am for thought-provoking address in the beginning. It's an honor to me to thank all the school HODs, teachers for their cooperation. And not to forget our moderator, Ma'am Gargi Gupta, the counselor of SRN International School, and the supporter and guide, Mr. Sumit Srivastava from EHCC Hospital. Both of them, they made the arrangements in a very short duration, inform the parents, and bring this webinar on this platform. Thank you wholeheartedly to EHCC Hospital for coordination, for cooperation, and work for humanity. Really, if this kind of sessions are going on, we will be getting some very beneficial things out of that. The topic which we have taken today, the mental situation, the mental health of children, very nicely explained by Kavita Bhargav ma'am. So thanks to ma'am and thanks to everyone. Once again, we will be meeting once again with some new topic on the same platform. Thank you everyone. Thank you, ma'am. God bless you, bacha. God bless you.
Very cute. Thank you, boy. Ma'am, I everyone. would like to thank, 1 minute, ma'am. I would also like to thank our Vice Principal Administration, Sarla ma'am, our hostel proctor, Mon ma'am, and Aprajita ma'am, our headmistress. All were there all through the session, and they were intently listening to you, ma'am, each and every word of yours. And believe me, that will definitely help us also to guide our students if we come across any such a situation. So thank you. Thanks a lot, ma'am, for that. Always our principal ma'am is asking ki just keep some webinars for the parents where we can get some help, especially in this pandemic situation. We need to work out. So really, Kavita ma'am was a very good session. Being with you is our privilege. Thank you. Same here. Same here. Thank you, Gargi. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Ma'am, Yes, Ayushman. Now, beta, Ayushman, now session is over, beta. Now you can leave, all of you. All the parents are requested to leave. Bye, ma'am. Bye, beta. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, bless ma'am. you. God bless you. Thank you very much, ma'am. Ishan, God bless you. Good. Thank you, ma'am. God bless you, Sagar. You are still here. You are not going for joining the class? Yes, ma'am. Okay, no problem. Now you can join your class. All the teachers can also leave. Yes, ma'am. All the teachers can also leave. Thank you, teachers. Thank you, Sarla ma'am. Thank you, Monica ma'am. Thank you, Aprajita ma'am, Pallavi ma'am. And a big thanks to Gargi. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Chetan sir, have you done the recording? Pranay sir done the recording, ma'am. Okay, Pranay sir has done the recording. Okay, fine. Thank you, Okay. ma'am. Thank you. God bless. God bless. Sagar, leave the meeting, beta.